Okay, good afternoon, everyone. Last time we left here, right? Limitation of social influence and persuasion. We have written that these two could be the significant tool to change or mold or influence people's behavior, but there are certain limitations. We were discussing, we have discussed few of the points, right? Like dominance of informal groups in the society, like caste group, religion group, hmm? Many other pressure groups are acting in the society, and these groups have deep rooted influence on the human psyche. Then if you are trying to change behavior or attitude of the people through social influence, or there is a person under whose influence some rational attitude could be influenced, so such kind of people are only few in our society, yes or no? Apart from this, there are many people, groups, institutions operating in our country which tend to promote or propagate the negative attitude. So people are inspired or influenced by them as well. I hope you're getting this. We have discussed many points. I think we should write all of them. So give heading and write. These two instruments, these THESE, these two instruments these two instruments are quite powerful in bringing behavioral change, in bringing behavioral change, but they are subjected to certain limitations. They are subjected to certain limitations. For instance, point number 1, existing prejudices and stereotypes. Existing prejudices and stereotypes. Within this point, you can write social influence and persuasion. Not persuasion, social influence. Social influence may reinforce, may reinforce the existing prejudgments or prejudices, may reinforce the existing prejudgment or prejudices instead of challenging them. Instead of challenging them. When society collectively holds biased beliefs, comma, individuals becomes less receptive
to progressive reforms. Progressive reforms. Fine with this? For example, caste-based prejudices. For example, caste-based prejudices. I hope you're getting this. हमारे समाज में many people are following this. तो ये social influence उसको reinforce कर देता है instead of challenging it. Yes or no? Next point, new point. Biasness. Biasness toward beliefs. Biasness toward beliefs. Biasness toward beliefs. Within that you can write human brain. Human brain. अरे ब्रेन ब्रेन ये ऊपर वाला मशीन. Human brain is quite lazy. Is quite lazy. आलसी होता ना ये? होता नहीं होता है? Human brain is quite lazy. And it carries the propensity. And it carries the propensity to seek information. To seek only that information. Only that information which is satisfying. Satisfying. Or, no, not or, satisfying its own beliefs. Satisfying its own belief. Satisfying its own belief. I hope you're getting this. So let's say I am trying to persuade you people, but your brain is lazy. So you are trying to seek only that thing which is satisfying your belief only. You are not ready to listen to the new modern thoughts, new ideas. And if anyone is trying to infuse something new, then in general, in the first instance, our mind try to reject it. Have you seen this? Yes or no? Have you seen this? अरे हाँ है ना? Any example? कहाँ देखा आपने ऐसा? कहीं आपने होते हुए देखा हो ऐसा? Any example of this? सॉरी, वैक्सीनेशन में हेजिटेशन दिखा रहे थे, मतलब वो मान कर बैठे थे कि अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो और बुरा होगा, और फिर उनको ऐसी रील्स आई जाती थी, कैसा करोगे तो ऐसा ही होगा. और do you know that Indian history is quite complex? Very complex, very problematic for some people, full of debates and discussions. Yes or no? No proper conclusion is there. Do we have any proper conclusion in history? No. India didn't had the tradition of writing history. Only with the advent of Muslim rulers, Indian people started writing the history. Otherwise, we are lacking the historical sources, particularly the historical traditions. हाँ, हमको पुराने मिलते हैं, inscriptions and all. Yesterday, I was watching a video, and in that video, that person was appreciating a teacher who was trying to reinforce the belief of people regarding medieval history. There was a video. In that video, that person, the video maker, the orator, he was praising a teacher who tend to justify, who tend to satisfy the existing beliefs of the society. So the teacher was saying
कि हमको बचपन से पढ़ा दिया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को अकबर ने हरा दिया था, एंड ही वॉज डिनाइंग इट कि नहीं नहीं हराया था, ही वॉज डिनाइंग इट कि नहीं हराया था, एंड ही वॉज चैलेंजिंग द ग्रेट हिस्टोरियंस ऑफ आवर कंट्री इंक्लूडिंग एवरीवन, फिर वो सतीश चंद्र हो कि रमेश हो कि रोमिला हो, कोई भी हो, he was criticizing everyone, and he was an ordinary person like us. He is a teacher. एज भी उनका बहुत ज़्यादा नहीं है, एज भी उनका बहुत ज़्यादा नहीं है. सो ऑन वॉट बेसिस ही वॉज सेइंग वो उन्होंने नहीं बताया. ऑन वॉट बेसिस ही वॉज सेइंग ये उन्होंने नहीं बताया. ही वॉज सेइंग कि किताबों में तो चलो लोग उल्टा पुल्टा लिखवा सकते हैं, इंस्क्रिप्शन में तो लोग उल्टा पुल्टा नहीं लिखवाएंगे, वो तो खुद गए जब लिखाए गए थे. पहली बात तो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में हमको इंस्क्रिप्शन से जानकारी बहुत कम मिलती है. इंस्क्रिप्शंस आर मोर लॉजिकल फॉर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, वहाँ के बहुत इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं. मेडिवल हिस्ट्री की जो जानकारी हमको मिलती है वो लार्जली किताबें और मोन्यूमेंट से ही मिलती है. मेडिवल हिस्ट्री की इंस्क्रिप्शन नहीं है ज़्यादा हमारे पास. अच्छा, दूसरी बात, इंस्क्रिप्शंस को भी तो रियल नहीं मानते लोग, इतिहासकार. देयर वाज अ किंग हर्षवर्धन एंड देयर वाज अ किंग पुलिकेशिन, इन दोनों का इंस्क्रिप्शन मिलता है. पुलिकेशिन, उसका राइटर क्या नाम उसका, रवि कीर्ति, ही हैज़ इंस्क्राइब्ड इन इंस्क्रिप्शन कि मेरे राजा ने हर्षवर्धन को हराया, घुटने पर लेकर आ गया. हर्षवर्धन का जो राइटर था, कोर्ट पोएट, व्हाट वाज द नेम ऑफ, हरिशेन मोस्ट प्रोबेबली, हरिशेन, हाँ था, उसका भी एक इंस्क्रिप्शन है. ही इज राइटिंग द सेम कि मेरे राजा ने, हर्षवर्धन ने पुलिकेशिन को हराया और उसको घुटने पर लेकर आ गया. अबे कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, सही है गलत है, वी डोंट नो. We don't know whether they are talking about the same battle or they are talking about the two different battles. Date is not there. Are you ever getting this? इंस्क्रिप्शन मिला, अब वो इंस्क्रिप्शन भी क्या है, एक ही युद्ध का है, अलग युद्ध का है, we don't know. लेकिन आपको तो हिस्ट्री में बताया गया होगा कि पुलिकेशिन II was the very powerful ruler. He stopped whom? क्या नाम था उसका, हर्षवर्धन. He stopped Harshvardhan, he restricted him from crossing the river नर्मदा. नर्मदा के इधर आने से उसको रोक दिया. ये कहाँ से जानकारी मिलती है हमको? रवि कीर्ति के इंस्क्रिप्शन से मिलती है. बट ऐसा इंस्क्रिप्शन तो उसका भी मिलता है. नाउ वी डोंट नो कि वेदर दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम इंस्क्रिप्शन और नॉट, सॉरी सेम बैटल और नॉट. हो सकता है दो लड़ाइयाँ हुई हो, डेट इज नॉट मेंशन्ड, पहले इसने हरा दिया हो फिर उसने हरा दिया हो, या इन्होंने जबरदस्ती लिख दिए हो. कोर्ट पोएट ही तो है, वी कॉल इट पैनेगायरिक, प्रशस्तीज, बड़ा चढ़ाकर लिखी हुई चीजें. बट ही वॉज प्रेजिंग द टीचर हु वॉज जस्टिफाइंग द बिलीव्स ऑफ द सोसाइटी. बट ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि क्या सही था क्या गलत था, बट वी कैन नेवर कंक्लूड इन हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री में हम कुछ कंक्लूजन पे आ पाते हैं, वरना कैसे? तो दैट वीडियो मेकर हैज क्रिटिसाइज्ड एवरी ग्रेट हिस्टोरियंस ऑफ आवर कंट्री. यू नो हाउ दीज हिस्टोरियंस वर्क्स? ये लोग सालों साल पढ़ते हैं. हिस्ट्री का एक पेज लिखने के लिए जो हम लोग फटाक से पढ़कर पलटा देते हैं, इस एक पेज को लिखने के लिए सालों का मेहनत लगता है. बिकॉज उनको एक एविडेंस मिला, नाउ दे आर क्रॉस वेरीफाइंग इट, फिर कुछ और मिला, फिर क्रॉस वेरीफाइंग इट, फिर क्रॉस वेरीफाइंग इट, फिर क्रॉस वेरीफाइंग इट, देन ओनली दे कैन राइट अ सिंगल पेज. फिर एक हिस्टोरियन उसको पढ़ता है, फिर वो अपनी किताब लिखता है, उसमें उसको भी चैलेंज कर देता है. कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं लेकिन ऐसा भी होता है. वी डोंट नो व्हाट इज द रियल ट्रूथ, बट दैट इज this particular example fit in medieval Indian history where people want to listen those things which is justifying their beliefs. On what basis he was saying, no one knows. I don't know why people are, और उसके वीडियोस पर लाखों में व्यूज थे और उसने किया कुछ नहीं. उसने क्या किया होगा, वो जो टीचर है
उसके रील्स पॉडकास्ट सुने, वहाँ से छोटे छोटे वीडियो क्लिप निकाले और अपना एक वीडियो बना दिया और उससे वो फेमस हो गया। आई होप गेटिंग दिस। जिन लोगों ने देखा दे आर वेरी हैप्पी, अच्छा यार ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। इट्स वेरी डिफिकल्ट। लोग उसको इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनके बिलीफ को क्या कर रहा है, वो जस्टिफाई कर रहा है। तो प्रेजुडाइसेस तो बढ़ेगा ही, यस सर नो। प्रेजुडाइसेस बढ़ेगा, स्टीरियोटाइप बढ़ेगा, और सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन भी इसको ख़त्म नहीं कर पाता, क्योंकि लोग वही सुनना चाहते हैं जो उनके बिलीफ को जस्टिफाई करे। अदरवाइज ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। कोई भी चीज़ पे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज डिबेटेबल, एवरीथिंग इज डिबेटेबल। यस सर नो, एवरीथिंग इज डिबेटेबल। नो वन कुड जस्टिफाई भक्ति मूवमेंट इतना लेट क्यों शुरू हुआ मेडिवल इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में क्यों शुरू हुआ? डू यू हैव एनी जस्टिफिकेशन? जस्ट आर्ग्यूमेंट, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, शायद ऐसा ऐसा हुआ होगा। नो डाउट दैट शिवाजी ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी उसमें 80% people who got defeated were the Hindus only. Shivaji was fighting political wars, not religious wars. He defeated many kingdoms, many kings. 90% of his battles were against the Hindus only. I hope you're getting this. पूरे राजपूताने को उन्होंने जीत लिया। राजपूत तो मुसलमान थे क्या? No, political war था, political war, nothing to do with religion. But जब religious विरोधी आया तो फिर उसको लोग धर्म के नज़रिए से देखते हैं। आई होप यू पीपल आर गेटिंग दिस। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये पॉइंट परफेक्टली फिट होता है। लोग वही सुनना चाहते हैं जो उनके बिलीफ को क्या करे, जस्टिफाई करे। कुछ नया आ गया, कुछ अलग से आ गया, एंड दैट इज़ वाई वी सेज कि हमारे सोसाइटी में डेमोक्रेसी क्या है, कमज़ोर है। बिकॉज डेमोक्रेसी इज अबाउट टॉलरेंस। डेमोक्रेसी इज अबाउट टॉलरेंस। डजंट मीन दैट वॉट एवर यू आर स्पीकिंग आई विल एग्री टू दैट। Tolerance means whatever you are speaking, I will allow you to speak, I will interpret, and I will debate. I will not fight, I will debate, will justify it. A spirit of inquiry. Without this, no democracy could be established. Yes or no? Our society is not democratic. हम चाहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाए। सिर्फ क्या बन जाए? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे बनेगा? फर्स्ट वी नीड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी कैसे बनेगा? फर्स्ट वी नीड डेमोक्रेटिक फैमिली। डेमोक्रेटिक फैमिली कैसे बनेगा? फर्स्ट वी नीड डेमोक्रेटिक बीइंग। इफ वी ऑल आर डेमोक्रेटिक, आवर फैमिली विल बी डेमोक्रेटिक, family is democratic, society will be democratic, and every institution is coming from society only. Yes or no? So our government will become democratic. लोग सड़कों पर गाली दे दे, सरकार लोकतांत्रिक सरकार हमें चाहिए, तो पहले आप तो लोकतांत्रिक बने। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। पहले लोकली एक्ट करना पड़ेगा। वी आर डेमोक्रेटिक, देन ओनली वी कैन हैव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आई होप गेटिंग दिस। फल खाना है तो पहले बीज बोना पड़ेगा, खाद पानी देना पड़ेगा, फिर उसे जानवरों से बचाना पड़ेगा, फिर वो पौधा बनेगा, फिर उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, वो पेड़ बनेगा, फिर फल आएगा। तो फल खाने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस है। यस सर नो? सिमिलरली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए तो पहले समाज को क्या बनना पड़ेगा? समाज डेमोक्रेटिक तब बनेगा तब आप लोग डेमोक्रेटिक बनेंगे। दैट इज द प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। आई होप यू गेटिंग दिस। वी आर हाईली बायस्ड। थर्ड पॉइंट, डोमिनेंस ऑफ ट्रेडिशनल सोशल ग्रुप्स। Dominance of traditional social groups. In many societies, influential groups based on caste, religion, ethnicity, shapes people's perspective. Such groups tend to promote prejudices and stereotypes. Rather than
rational rather than rational beliefs. Rather than rational beliefs. These groups could be pressure groups or civil society organizations. These could be pressure groups or civil society organizations. Pressure groups or civil society organization. Are you getting this? Pressure groups can be based on caste. Pressure groups can be based on religion. It can be on anything. And they influence people's perspective to greater extent. Are you aware of this यार? कोई नई बात थोड़ी है ये. आपकी बहुत सारे जाति धर्म समाज के अलग अलग ग्रुप्स बने होंगे, उनके प्रोग्राम्स में आप जाते रहते होंगे. सो दे प्रमोट देयर ओन थिंग. यस और नो? दे प्रमोट देयर ओन थिंग. कोई जाट मिल गया आपको, नाउ ही विल प्रोपगेट कि जाट लोगों ने क्या लड़ाइयाँ लड़ी हैं, शूरवीर योद्धा रहे हैं, ये वो फलाना टिम का. एक राजपूत प्रेशर ग्रुप मिल गया, एंड देन दे विल प्रोपगेट कि हमारे इतिहास को दबा दिया गया है, इतिहास के पन्नों में 15 पन्ने हैं, किताबों में से 15 पन्ने ही डेडिकेट किए गए हैं. ये सब यूजलेस बातें हैं. डू यू थिंक दीज आर सेंसफुल थिंग्स? डू यू थिंक अब आज हमारे देश पर किताब लिखी जाएगी तो नरेंद्र मोदी का नाम आएगा उसमें ज़्यादा, और अपना मोहनलाल यादव शुरू हो जाए, अरे मेरा इतिहास दबा दिया गया है. अरे सर, आप माइनर पोजीशन पर हो. द पीपल हु आर कैप्चरिंग दिल्ली, दे आर रनिंग द पॉलिटिक्स. So majority of the content will revolve around them only. Are you ever getting this? And just read medieval Indian history, ancient Indian history. There is not a single reference of Muslim in those textbooks. एक भी reference नहीं मुसलमानों का. And read modern Indian history. There is no reference of Ashoka in that. Phases की बात है, जिस phase पे जिसने dominate किया. अब राजस्थान के स्कूल के टेक्स्ट बुक विल स्टडी देयर लोकल हिस्ट्री जस्ट लाइक यू आर स्टडिंग देवी अहिल्याबाई. नो वन नोज देवी अहिल्याबाई इन राजस्थान. आई होप यू गेटिंग दिस. बट दीज काइंड ऑफ बायसनेस आर ऑलवेज देयर. हमारे इतिहास को दबा दिया गया है. इन राजस्थान देयर वर राजपूत किंगडम्स, दे रूल्ड लोकली. सो उनके जो लोकल टेक्स्ट बुक्स हैं वहाँ पर उसका वेटेज ज़्यादा होगा. उनकी सिविल सर्विस की एग्जाम होगी राजस्थान वालों की, तो दे विल आस्क मोर क्वेश्चन ऑन राजस्थान हिस्ट्री बिकॉज दे हैव समथिंग टू टेल. बट वी कांट से व्हेन ऑल इंडिया लेवल पर इतिहास की किताब लिखी जाएगी तो उसमें राजपूतों के ऊपर 60% पेजेस होंगे. हाउ इट्स पॉसिबल? आई होप यू आर गेटिंग दिस. द हिस्ट्री revolve around those people who have conquered the larger territories, territories. Delhi was the center. Why Delhi was the center? It was in between Doab, fertile land. At that time, agriculture was the only source of income. That was a fertile belt. The person who is controlling Delhi will be more resourceful. If you are more resourceful, then you will have more power, more military, more army, and then you will control more territories. So history will revolve around them only. Yes or no? Today, if you are going to write the book on politics, definitely Narendra Modi will be the center of that book. अब अपने भार्गव साहब, पुष्यमित्र भार्गव रोने लगे, हमारे इतिहास को दबा दिया गया है. सर, यू आर मेयर ऑफ इंदौर. व्हेन वी आर राइटिंग अबाउट इंदौर वी विल रेफर यू. यस और नो? फिर अपना चिंटू चौक से रोएगा, करे मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, मेरे को दबा दिया गया. अरे सर, यू आर नॉट कंट्रोलिंग द पॉलिटिक्स. आई एवर गेटिंग दिस. मध्य प्रदेश लेवल पर लिखी जाएगी तो फिर सीएम साहब का अपने का ज़्यादा बार जिक्र आएगा. सो दोज हु आर कंट्रोलिंग द सेंट्रल पॉलिटिक्स, द अथॉरिटेटिव पोजीशन, हिस्ट्री रिवॉल्व्स अराउंड देम. यस और नो? बेफालतू की बातें लोग फैलाते रहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, न्यू पॉइंट, डीप रूटेड सोशल नॉर्म्स. Deep rooted social norms. Certain customs and traditions. Certain customs and traditions are embedded so deeply. In society. Embedded so deeply in society.
embedded so deeply in society that social influence alone can't change them. Can't change them. People continue following continue following the established norms. Established norms because they fear social rejection. They fear social rejection. For example, dowry. For example, dowry. Yes. Any other thing that you want to mention apart from dowry? People are following some traditional beliefs just because they are fearful that society will discredit them, disregard them, reject them, neglect them, ignore them. Apart from dowry, any other thing? Any other thing apart from dowry? और कुछ नहीं देखा आपने? हाँ, पर्दा लिख लो, वेल सिस्टम, पर्दा सिस्टम, वेल सिस्टम, पर्दा सिस्टम, और कास्ट, इंटर कास्ट मैरिज लोग कहाँ कर रहे हैं? सेम कास्ट मैरिज, हाँ देखो, मैरिजेस इन सेम कास्ट, समाज दरकिनार कर देगा, तो फिर क्या करें? फिजिक्स का टीचर डूइंग मंगलनाथ की पूजा, ठीक है, फिजिक्स का टीचर मंगलनाथ की पूजा कर रहा है यार. हाँ, ही इज ऑल्सो फियरफुल ए सोसाइटी विल डिसरिगार्ड मी. अबे साले तू ज़्यादा ही पढ़ लिया है क्या, तो जाके मंगलनाथ की पूजा कर रहा है. रिलीजियस नाम से यार, अब क्या करें? हाँ, रिलीजियस नाम से क्या करें? वो मूवी देखा क्या, बजरंगी भाईजान? हाँ, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग any religious faith and belief, but in general, if you think like this, in that movie, that person who was a generalist, local generalist, he was asking the Bajrangi was offering prayer to Hanumanji. He saw a monkey and he started, and then he asked, ये क्या कर रहे हो? बोले बजरंग बली. तो यहाँ भी मदद करेंगे क्या पाकिस्तान में? ये तो लॉजिकल सवाल बोल दिया उसने. तो बजरंगबली पाकिस्तान में मदद करेंगे क्या? ना, मेनी हिंदूज आर लिविंग इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सो दे आर वर्शिपिंग देयर गॉड. अब वो भी कहेंगे इधर मदद करेंगे, इधर तो जीसस मदद करेंगे. सो वी नो रिलीजन इज समथिंग डिफरेंट, सोसाइटी वर्क्स डिफरेंटली. फिजिक्स का टीचर बीटिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि उसने लाल ग्रह बुध को कह दिया था सर मरकरी इज द रेड, उसने मारा उसको. साले कल इतना याद कराया था, मरकरी इज नॉट रेड, मंगल इज रेड, मार्स इज रेड. अभी तो यहाँ बड़ा साइंटिफिक हो रहा है. और फिर अगले दिन मंगलवार को जाकर 1 घंटे हवन किया उसने. व्हाट यू आर डूइंग? मंगलनाथ की पूजा, मंगल है मेरे को. पीपल आर डूइंग दिस. ये बिलीफ इतना डीपली इम्बेडेड है कि इवन आफ्टर एक्वायरिंग द नॉलेज, पीपल, सोसाइटी इज नॉट रेडी टू रिजेक्ट देम. अब भले वो नहीं मान रहा, उसके घर वाले पड़े पीछे, तेरे को मंगल है, भारी है, चल कर जाकर. तो समाज उसको दरकिरार ना कर दे, इसके डर से ही लोग ये चीज़ें फिर से फॉलो करने लगते हैं. आई होप यू गेटिंग दिस. नेक्स्ट पॉइंट, फियर ऑफ सोशल बैकलैश. फियर ऑफ सोशल बैकलैश. fear of social backlash, and it weakens ethical decision making, and it weakens ethical decision making. Next,
Conflicting opinions in society. Conflicting opinions. Where? In conflicting opinions in society. Society, same point. Society rarely speaks in one voice. Rarely speaks in one voice. Different groups promote different values. Different groups promote different values. As a result, as a what? A result, individuals become confused. Individual becomes what? Confused. Confused. And behavioral change. Individual become confused, and behavioral change becomes more sluggish. Becomes more sluggish. More sluggish. More slower. More sluggish. ETC. ETC. In case of administration, change the paragraph. In case of administration, in case of administration, the above mentioned factors work. The above mentioned factors work, but there are some other challenges as well. But there are some other challenges as well. एडमिनिस्ट्रेशन का सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन से क्यों चेंज नहीं हो पाता? अबाउ मेंशन फैक्टर तो वर्क करते ही करते हैं, बट देर आर सम अदर चैलेंजेस एज वेल. फॉर इंस्टेंस क्या चैलेंजेस हैं? We expect from civil servants that they must take innovative decisions, bold initiatives, yes or no? But ultimately, they are the civil servants. They are accountable to the political masters. You have to follow them. Are you getting this? Yes or no? You have to follow them. Moreover, you want to take innovative actions, fine. You want to take bold initiatives, fine. But you are responsible and answerable for the expenditures as well. कहाँ पैसा खर्च कर रहे हो, कितना पैसा खर्च कर रहे हो, क्यों खर्च कर रहे हो, यू हैव टू रिपोर्ट टू दी अथॉरिटीज. फिर यहाँ पे कैसे काम चलेगा? फ्री हैंड अगर आपको देंगे कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, इस सिटी को स्मार्ट सिटी बना दो, देन वी कांट ट्रस्ट यू what you will do. I hope you're getting this. So there are challenges. Apart from above mentioned factors, there are certain different challenges as far as administration is concerned. So you can mention this. On one hand, civil servants are asked to be bold. Civil servants are asked to be bold. On other hand, any decision, on other hand, any decision which result into loss to government exchequer, loss to government exchequer, they
there can be inquiry. Loss to government exchequer, there can be inquiry. There can be inquiry. on one hand on one hand we expect them on one hand we expect them to show democratic attitude. We expect them to show democratic attitude, while on another hand it is political master, it is political class, it is political class which is accountable and responsible to the people, which is accountable and responsible to the people. Accountable and responsible to the people. And for this reason they have to follow, the orders of political class. Political class. Comfortable? etc. और भी तमाम किस्म की बहस हैं, अब कितना करेंगे हम लोग. Now we can come to a new heading, that is aptitude. Give new heading. Aptitude. What we have seen in attitude, जरा एक बार मोटी मोटी हेडिंग्स देखो जरा, हमने क्या क्या बातें की एटीट्यूड के अंदर. ऐसा कितना पेज हमने लिख लिया है, पलटे जा रहे हो. हाउ मेनी पेजेस आर देयर? बहुत सारे. अरे 2 3 4 और क्या, इससे ज्यादा थोड़ी होंगे. कितने? 28 पेजेस? आर यू सीरियस? 19 हो रहा है इनका तो. आपने कुछ घर पे मन से तो ऐड नहीं किया है दोनों तरह का. आपने सिंगल पेजेस काउंट कितना हो रहा है? ओके. नाउ एक्सट्रैक्ट कंटेंट. थोड़ा करंट अफेयर्स में कुछ होता है तो फाइन. मेनी मोर थिंग्स आर देयर. पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है, मोरल एटीट्यूड क्या है, फाइन. एटीट्यूडनल चेंज, वी हैव डन दिस. एटीट्यूडनल चेंज, यस और नो? एटीट्यूडनल चेंज किया नहीं किया? नहीं किया. तो सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन क्या है? एटीट्यूड चेंज करने के तरीके ही तो है. वंस यू हैव एक्वायर्ड द नॉलेज, योर एटीट्यूड कुड बी चेंज. योर personal experience will be the instrument to change your attitude, yes or no? If you want you can give a small heading. If you want you can give a small heading. Attitude के structure में means what you are asking? Attitude का this is the structure of attitude. What is attitude, how it is formed, what are the factors that influence it, how it could be evolved, change, application of attitude. He is aware structure of attitude. Discriminations, sorry,
एटीट्यूड में, आपके एटीट्यूड में होगा, मेरे में तो नहीं है। शी सिंग एटीट्यूड में डिस्क्रिमिनेशन भी है, मेरे में तो नहीं है। आप पूछना क्या चाहते हो, मैं समझा नहीं। सारे नहीं, थोड़े से, सारे तो पता नहीं कितने होंगे। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन भी है तो अच्छा, यू वांट टू से कि सिलेबस में वर्ड डिस्क्रिमिनेशन भी दिया हुआ है? यार डोंट बिहेव लाइक दिस। डू यू रियली थिंक कि नाउ देयर शुड बी डिफरेंट डिक्टेशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन? इफ यू हैव एक्वायर्ड नेगेटिव एटीट्यूड इट विल लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। आपने मेरे बारे में बुरा बुरा सब एटीट्यूड एक्वायर कर लिया है तो आप भेदभाव करोगे मेरे से। एटीट्यूड विल लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। इफ यू हैव प्रेजुडाइसेस देन योर एटीट्यूड विल बी डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड। सेम ही तो चीज है। नहीं समझ पा रहे हो क्या? व्हाट शी इज सेइंग कि सर इन सिलेबस द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन इज आल्सो मेंशन्ड and it is also related to attitude. Obviously, if I have acquired a positive attitude toward any object, then I will show favorable behavior toward that. Negative knowledge acquire kiya, then discriminatory attitude. If you really want to write definition of discrimination, then I could dictate लिख लो एक, but things will remain the same. Yes or no? अगर आपके मन में किसी चीज को लेकर prejudices हैं तो आप discriminatory हो जाओगे। and we have written somewhere कि कभी कभार ये बहस, लड़ाई झगड़े, इट कुड लीड इट टू वायलेंस एंड मर्डर एज वेल। प्रेजुडाइसेस, यही तो डिस्क्रिमिनेशन है। इफ यू वांट यू कैन राइट, गिव ए स्मॉल हेडिंग, डिस्क्रिमिनेशंस, इट्स फैक्टर्स और कॉजेस। डिस्क्रिमिनेशंस, इट्स फैक्टर्स और कॉजेस। Discrimination is an act of unjust treatment of an individual toward any object. Unjust treatment by an individual toward any object. You should write like this: by an object toward any object. That object could be caste, religion, country, relative, any person, any group, any community, any institution, etc. I hope you're getting this. What are the factors? लिखो factors of discrimination. क्यों लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? राइट, फर्स्ट पॉइंट, नेगेटिव एटीट्यूड, दे हैव एक्वायर्ड नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड दैट ऑब्जेक्ट। सिर्फ नेगेटिव एटीट्यूड लिखो। सेकंड, प्रिजुडाइसेस एंड स्टीरियोटाइप्स, सोशलाइजेशन। सेम पॉइंट्स लिखने हैं यार। सोशलाइजेशन, फिर ये सारे लिख देना अब आप। डीप एम्बेडेड सोशल थॉट्स हैं, कुछ ऐसे प्रेशर ग्रुप्स हैं इनका इन्फ्लुएंस समाज में बहुत ज़्यादा है, सो वो हमको प्रेजुडाइसेस देते हैं, फिर हम डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड करते हैं। सेम किनके बीच में? प्रेजुडाइसेस लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स आई एम नॉट ट्रीटिंग यू एट पार विथ हर, शी इज मोर फेवरेबल टू मी, यू आर लेस फेवरेबल टू मी। वाई? क्या कारण है इसका? तो मेरे को पता चला यू आर जैन, लहसुन प्याज नहीं खाती। अरे कैसे लोग हैं यार ये, छोड़ो, अपन लोग बात करते हैं। मोर फेवरेबल, लेस फेवरेबल, प्रेजुडाइसेस। आई एम गेटिंग दिस। फलानी कास्ट के हैं, अरे लोग ऐसे ही होते हैं,
then discrimination. Discrimination means भेदभाव. But why people are discriminating with others? Because of the thoughts they carry. That could be stereotype, that could be prejudices, that could be anything. Are you getting this? हमने कहीं जिक्र किया है ये. अगर प्रिजुडाइसेस आप किसी के लिए कैरी करते हो तो आपका रवैया उस ऑब्जेक्ट के लिए डिस्क्रिमिनेटरी हो जाता है. अभी सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन, अरे इग्नोर देम. समटाइम इट विल बी मोर एंग्री रिएक्शन, अबे यार ये ज़्यादा ही तेज चल रहे हैं. इट विल लीड टू abuse, it will lead to verbal violence and then it will lead to physical violence. दंगे फसाद कर हो गए पता चले. हाँ, हिंदू मुसलमान के बीच में हो ही रहा है देश में. आई एम गेटिंग दिस. चलो फिर कल देखेंगे एप्टीट्यूड. थैंक यू.